We will continue from our previous class. And today, beside talking about neorealism, we will talk some more about clash of civilization and end of history. Yesterday, we had learned these two concepts, these two theses, which have been given by Francis Fukuyama, end of history, and Samuel Huntington, clash of civilization. You had seen that when Soviet Union fell, it was declared that it was end of history and that history has come to a standstill, that communism has failed, and there is only one model, which is Western model of democracy, Western model of liberal democracy and capitalism, which has survived. That West has won in the Cold War, and that all the nations should now adopt this Western model of democracy. Beside this, Samuel Huntington gave the concept of the thesis of clash of civilizations. We had in the previous class also seen that Huntington was of the opinion that we are moving from a global triumph of liberal democratic capitalism towards a foreboding of clash of civilizations. And this clash will be between Christian West and an emerging Confucian Islamic civilizational alliance. So, this he had predicted that it is going to happen, that there will be a conflict, there will be civilization clash between two civilizations. Now, Huntington, when he says civilization, he does not mean social development or socio-cultural values. What he means to say by civilization is that a kind of a system where economic development, material wealth, military power, etc., are present. A country which has more of military power, which has more of economic development and material uh, development, that country he placed in zone of peace. You must be remembering from our last class that Huntington has said there are two zones. One is zone of peace and another is zone of conflict. In zone of peace, he places countries which are developed, and as they are developed, they are satisfied, and if they are satisfied, then they will not choose to go to war. And so these countries are termed as zone of peace. And we had also seen that about 64 countries form the core of zone of peace. And this includes advanced industrial, liberal, democratic, capitalist countries. While zone of turmoil is made up of countries which are continuously in conflict, which are not developed, which are economically poor, and as such, they are in turmoil, they are engaged in uh, conflicts. And these countries which are in zone of conflict, what do they need? They need to be modernized, democratized, or it was said by Huntington that they should move from communism to market economics. मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू किया है। अब इसके आगे की अगर हम लोग बात देखें कि आगे हटिंगटन क्या कहते हैं, जो जोन ऑफ पीस की बात हटिंगटन कहते हैं, जिसको ऐसा नाम से वो जाहिर करते हैं कि यहाँ पे शांति है, बट वी कैन सी दैट जोन ऑफ पीस इज actually not very peaceful.
and zone of turmoil is not uniformly in chaos, यानी हमेशा नहीं वहां पर युद्ध होते रहते हैं, और इसी तरीके से जोन ऑफ पीस में भी हमेशा शांति ही बनी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। हटिंगटन इनफैक्ट ये दोनों जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये जो दोनों जोन्स की बात करते हैं, उसका उद्देश्य है कि वे अपनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी को बना सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। So these two zones of peace and turmoil represent for Huntington not merely zones of prosperity and underdevelopment respectively, but they symbolize peace and stability in one case and conflict and instability in the other। यानी जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में अनस्टेबिलिटी है, यहां पर लगातार अशांति बनी रहती है, और दूसरी ओर जोन ऑफ पीस में शांति है, स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। ऑल्सो these two zones are seen as being two different blocks of nations representing two different civilizations। ये दोनों ही ब्लॉक हटिंगटन के अनुसार दो अलग अलग सभ्यताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा हम लोगों ने देखा कि सभ्यता का मतलब यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, सोशल वैल्यूज या कल्चरल वैल्यूज से नहीं लिया गया, बल्कि इसका अर्थ क्या है कि ऐसी कंट्रीज which have reached a certain level of material wealth, military power, and of course they are liberal democratic capitalist systems। तो उसने सिविलाइजेशंस को इन आधारों पर बांटा है। प्रायः हम लोग सभ्यता से अर्थ लगाते हैं सोशल और मॉरल वैल्यूज का, कल्चरल वैल्यूज से हम सिविलाइजेशन का मतलब वे ऑफ लाइफ लगाते हैं, लेकिन हटिंगटन सिविलाइजेशन को भी एक मटेरियल रूप दे देते हैं जिसको गॉज किया जा सकता है, क्योंकि मटेरियल वेल्थ को तो हम नाप सकते हैं, हम किसी भी देश की जो मिलिट्री पावर है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ सिविलाइजेशन का मतलब उन देशों से है, और जितना जिसके पास मिलिट्री पावर है, जितना उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उसके पास मटेरियल जो साधन है वो है, जितना ज्यादा होगा उतना वो देश किधर चला जाएगा, जोन ऑफ पीस की ओर, और जितना कम होगा उतना ही वो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की ओर। यानी दो तरीके के सिविलाइजेशंस रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों जोन्स। साथ ही साथ हटिंगटन का ये कहना था कि वेस्ट के द्वारा जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें भी इस लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को लाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सही है, जस्टिफाइड है। इनफैक्ट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस क्या करती है, इट टेंड्स टू क्रिएट एन इथॉस। कैसा इथॉस? फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द परपेचुएशन of the nefarious policy of powerful West for the justification of any action that the West might take against non-Western world in the name of the interest of protecting the monopoly from the envy of those belonging to the other civilization। Western countries के द्वारा लिबरल डेमोक्रेसी को लाने के लिए नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के विरुद्ध अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस हटिंगटन की जस्टिफाई करने का काम करती है, और ये साबित करने का काम करती है कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड should not envy the Western world if Western world adopts certain policies or takes certain actions। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, अमेरिका की उस नीति को कि जो दूसरे राज्यों की डोमेस्टिक पॉलिसी तक में उसको इंटरफेयर करने का मौका दे देती थी,
पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनने की अमेरिका की पॉलिसी, या विश्व में पीस का प्रोटैगनिस्ट बनने की पॉलिसी, ये सभी कुछ जस्टिफाई कर देता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये कहते हुए कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेरोगेटिव है कि वे नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर पीस नहीं है, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ये इंटरवीन कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वी आर रिमाइंडेड ऑफ व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी ऑल्सो। व्हाइट मैंस बर्डन की थ्योरी क्या थी कि ये गोरे लोगों का दायित्व है कि वे काले लोग जो असभ्य हैं उनको इमेंसिपेट करें। ईश्वर ने गोरे लोगों को ये दायित्व सौंपा है कि वे काले लोगों को एजुकेट करें, शिक्षित करें और उनका इमेंसिपेशन करें। और इसी के नाम पर यूरोप ने एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर शासन करने का काम किया, उन्हें अपनी कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी बनाकर वॉज यूरोप फुलफिलिंग इट्स व्हाइट्स मैन बर्डन? No, if it was really like keen on emancipating these countries, then its action would have been totally different. ये इन्हें अपनी कॉलोनी ना बनाकर इनके विकास के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगाता, इंडस्ट्रीज को लगाता, एजुकेशन को लाता, जिससे इनका विकास हो सके। 1945 के बाद हम देखते हैं कि रियलिज्म और नियो रियलिज्म ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। अमेरिका ने अपनी आइसोलेशन की पॉलिसी को छोड़ा और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में उसने अपनी घुसपैठ की। यहां से रियलिज्म को हम देखते हैं कि उसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट था उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से 1979 में जो न्यू कोल्ड वॉर आया, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड देन ड्यूरिंग न्यू कोल्ड वॉर which was a period of bipolarism and multipolarism, इन दोनों समय में रियलिज्म और नियो रियलिज्म ने अमेरिका के द्वारा अपनाई जा रही फॉरेन पॉलिसी, जो इंटरवेंशन की थी, जो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की थी, और इसके नाम पर दूसरे देशों को हथियार देने की या दूसरे देशों में को अपना सैटेलाइट बनाने की जो नीति थी उसको जस्टिफाई किया। एंड देन व्हाट हैपेंड व्हेन कोल्ड वॉर एंडेड? तब ये प्रश्न आया कि अब कैसे अमेरिका अपनी जो पावर सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है उसको जस्टिफाई करेगा। एंड देन वी सी दीज टू थ्योरीज, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी रियलिज्म, नियो रियलिज्म, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभी क्या दिखते हैं आपको कि एक सीरीज दिखती है आपको जो ग्रेजुअली एट वेरियस टाइम्स दे टेंड टू जस्टिफाई फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसा आपको याद होगा कि नियो रियलिज्म ये कहता है कि विश्व में जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, राज्य जो भी करते हैं, उसकी वजह कहां पर है? नॉट इन ह्यूमन नेचर बट इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? जो डिसेंट्रलाइज्ड है और एनार्किक है। डिसेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। और एनार्किक है क्योंकि एवरी स्टेट हैज इट्स own national interest. They are sovereign states and they have their own national interest and they are all aspiring to expand their power. और ऐसे में वे अपनी पावर को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। That is why it is called anarchic. There is no control over them. There is no international body, world body which controls their actions.
और नतीजा क्या होता है कि स्टेट्स अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं. तो हियर वी सी अ बैलेंस ऑफ कैपेबिलिटी वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर. जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो अपने अपने पक्ष में शक्ति को करने की कोशिश करता है. पावर इज द सेंटर ऑफ फॉर बोथ रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट. तो ये जो एक थीसिस दी गई, पोस्ट कोल्ड वॉर, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, this is also an extension of structural realism and classical realism. अब अगर हम ये बात कहते हैं तो हमको ये देखना होगा कि एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कैसे काम करते हैं. It will be good if we see clash of civilization thesis in conjunction with the end of history thesis. And when it is asserted that the end of Cold War marks the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy is the final form of human government, the principal message which is conveyed is that the non-Western nations should reconcile themselves, and they should realize that the reality is that they have no choice but to adopt the Western mode of governance and economy, which is liberal democracy and capitalist or market economy. And supposing if this natural course of history is resisted by non-Western world, then what will happen? Those powerful nations who consider themselves to be the custodian of this responsibility of bringing all nations under the umbrella of Western model of international political system, they will accelerate the fulfillment of the goal inherent in end of history thesis, which means that they will try to influence non-Western countries to come to their side, to Western model adoption by them. So this end of history and clash of civilization, both are quite related to each other. They are interlinked. When there is end of history, then clash of civilization will begin, because non-Western world may not be ready to accept that history has come to an end, or Western system is the only system, and they should also adopt that. And of course, resistance will cause clash of civilization. So the clash of civilization is thus a clash between new civilization, which is represented by liberal democracy, and capitalism on the one hand, and on the other hand, what do we have? We have another civilization which is represented by everything else that does not fall in line with Western civilization. अगर आपको याद होगा कि जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने अपने यहाँ सितंबर 2001 में WTC के ऊपर हुए हमले के बाद जो उसने सर्च आरंभ किया ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, जो लड़ाई आरंभ की, उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ, आइदर यू आर विद अस और विद देम, यानी बीच का कोई रास्ता नहीं है. या तो आप अमेरिका के साथ हैं या फिर आप आतंकवादियों के साथ हैं. यही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर भी आप निहित देखते हैं. और अमेरिका ने उन देशों के लिए जो उसके साथ नहीं थे, उनके लिए उसने स्टिक की पॉलिसी अपनाई, और जो देश उसके साथ थे उनके लिए उसने कैरेट की पॉलिसी को अपनाया. तो दिस इज हाउ
the end of history and clash of civilization can be seen working in reality. अब ये जो रियलिज्म के विषय में हम लोगों ने बात की, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से रियलिज्म एक ग्राउंड तैयार कर देता है अमेरिका की वेरी विगरस फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो उसने 1945 के बाद से अपनाया था. America's more vigorous involvement in world politics had begun after 1945. Before that, it had adopted the policy of isolationism. But after 1945, America realized that it has no other option to be the part, in fact, to lead the world. तो एक तरफ अमेरिका ने ये जिम्मेदारी निभाई, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने, जो एक दूसरी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था. और पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में जब कम्युनिज्म का एंड हो गया, उसके बाद अमेरिका की अग्रेसिवनेस को, उसकी फॉरेन पॉलिसी को, और जो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, जहां पर उसने आपको सुपर पावर ही नहीं बल्कि सुप्रीम पावर मान लिया, विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति के रूप में अमेरिका स्थापित हुआ. तो जो सुप्रीम पावर का उसका रोल था, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो सिद्धांत था, वो उसके बड़ा काम आया. So you can see that somehow ये जितनी भी थ्योरीज थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट करने का काम किया, उसको जस्टिफाई करने का काम किया. प्रायः जो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज हैं, वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है. वी सी दैट देयर इज an American school of thought in international relation. So, of course, behind realism and behind neorealism also, we find that thought process only. I hope you are able to understand this much, and if you have any question, you can ask.